تھینک یو۔ مسیح یسوع کے قادر نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ کتنے لوگ خداوند یسوع مسیح میں خوش ہیں؟ آئے زوردار تالیاں یسوع کے جلال کے لیے ہم لوگ بجائیں۔ لاسٹ سنڈے ہمارا ٹاپک جو تھا وہ دعا تھا، اور آج بھی ہم اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے۔ آئیے جن کے پاس خداوند کا زندہ کلام موجود ہے وہ نکالیے میرے ساتھ۔ لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 3 باب اور اس کی 21ویں اور 22ویں آیت زیر مطالعہ ہوگی۔ یہاں پر لکھا ہے، جب سب لوگوں نے بپتسمہ لیا اور یسوع بھی بپتسمہ پا کر دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ آسمان کھل گیا اور روح القدس جسمانی صورت میں کبوتر کی مانند اس پر نازل ہوا، اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔ کلام مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ دعا جو ہے یہ انسانی زندگی کے اندر بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور ہم اس بات کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ مسیح یسوع نے اپنی زمینی زندگی میں دعا کو خاص اہمیت دی ہے، اور مسیح یسوع جو نجات دہندہ ہے، جو خدا ہے، اس کے باوجود وہ راتیں دعا کے اندر گزارتا ہے، اس کا زیادہ تر وقت دعا کے اندر گزرتا ہے، اور دعا جو ہے وہ خدا کے ساتھ بات چیت کا نام ہے، اور یہ روحانی طور پر زندگی کی علامت ہے۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر خدا کے ساتھ بات چیت نہیں ہے، خدا کے ساتھ دعائیا تعلق نہیں ہے، تو آپ روحانی طور پر مردہ ہیں۔ لیکن اگر آپ کی زندگی میں دعا ہے، اگر آپ کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، تو آپ روحانی طور پر کیا ہے؟ زندہ ہے۔ بزرگ پالوس کی زندگی میں بھی دعا بڑی زیادہ اہم تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ پالوس کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، یعنی ہر وقت میں مسیح کے ساتھ کنیکٹ رہتا ہوں، میں مسیح کے ساتھ بات کرتا رہتا ہوں۔ لیکن آج کا مسیحی پریشانیوں میں کیوں مبتلا ہے؟ آج کا مسیحی مصیبت کے اندر کیوں ہے؟ کیونکہ آج کے مسیحی کی زندگی میں دعا نہیں ہے۔ ہم لوگ دعا نہیں کرتے ہیں۔ مسیح یسوع نے کیا کہا کہ جب تو دعا کرے تو کیا کر؟ تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور کیا کر؟ پوشیدگی میں، یعنی خدا آپ سے الگ تعلق چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ وہ آپ سے بات چیت کرے، اور تنہائی میں بات چیت کریے۔ مسیح یسوع کی زندگی دعائیا زندگی تھی، اور آج ہم مسیح یسوع کی دعائیا زندگی کی ایگزامپلز دیتے ہیں، مسیح یسوع کی دعائیا زندگی کے بارے سکھاتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہم مسیح یسوع کی دعائیا زندگی کو اپناتے نہیں ہیں۔ مسیح یسوع کی زمینی خدمت کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ جیسے ہی مسیح یسوع نے بپتسمہ لیا، اور بپتسمہ پا کر مسیح کیا کر رہے تھے؟ دعا کر رہے تھے۔ تو کیا ہوا؟ جیسے ہی مسیح کے لب دعا کے لیے کھلتے ہیں، ادھر خدا کا آسمان مسیح یسوع کی زندگی پر کھل جاتا ہے۔ خدا کا آسمان کھل جاتا ہے، اور مرکز کی انجیل میں دیکھا آسمان پھٹ گیا، یعنی دعا خدا کے آسمان کو آپ کی زندگیوں پر کھول دیتی ہے، اور دعا کے وسیلے سے کیا ہوا؟ روح القدس جسمانی صورت میں مسیح یسوع کی زندگی پر
आया और मसीह ने क्या कहा, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूं जो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। यानी दुआ रूहुल कुद्स को, जो हमारा शरीके कार है, जो हमारा उस्ताद है, जो हमें आइंदा की बातें बताता है, और इवन देन हमें दुआ करना नहीं आती, रूहुल कुद्स हमारे अंदर से होकर ऐसी आहें भरता है कि हमारी दुआएं खुदावंद के आसमान को खोलती हैं। फिर लिखा है कि क्या हुआ, आसमान से आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है। यानी दुआ हमें खुदा के बेटे और बेटियां बनाती है। और लिखा है तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। अगर आपकी जिंदगी दुआया है, अगर दुआ आपकी जिंदगी का हिस्सा है, तो फिर खुदावंद आपसे खुश है। और जब खुदावंद किसी से खुश होता है तो वो अपनी बरकत का आसमान उन लोगों पर खोल देता है। और मसीह यीशु ने जब जमीनी खिदमत का आगाज किया तो दुआ के साथ मसीह ने अपनी जमीनी खिदमत को शुरू किया। और मसीह की जो जमीनी खिदमत का तसलसल था, उसकी कामयाबी भी दुआ के अंदर पिन्हा थी। आइए एक हवाला मेरे साथ मुताला कीजिए, मरकस की अंजील पहला बाब उसकी 34वीं और 35वीं आयत। मरकस पहला बाब उसकी 34 और 35 आयत। कोई भी बाब आवाज़ बुलंद पढ़ दे। और उसने बहुतों को जो तरह तरह की बीमारियों में शिकार थे, मुब्तला थे, उनको क्या किया, अच्छा किया जी। और बहुत सी बदरूहों को भी निकाला, और बदरूहों को बोलने ना दिया जी, क्योंकि वो उसे पहचानती थी जी। आगे पढ़िए। और वो सुबह होने से बहुत पहले तन्हा चला गया और वीरान जगह पर क्या किया, दुआ की। मसीह सारा दिन बदरूहों को निकालते, मसीह बीमारों को अच्छा करते, मसीह मुर्दों को जिंदा करते, और पूरी रात मसीह की दुआ के अंदर गुजरती थी। मसीह यीशु की जमीनी खिदमत का आगाज दुआ से है। मसीह यीशु की जमीनी खिदमत का तसलसल दुआ की वजह से है, बाप के साथ ताल्लुक की वजह से है। मसीह पूरी रात बाप से बातें करते, और जब मसीह यीशु बाप से बातें करके कुव्वत से भर जाते, और फिर जब निकलते, वो कुव्वत बीमारों के लिए शिफा बनती, वो कुव्वत मुर्दों के लिए जिंदगी का सबब बनती, और बदरू गिरफ्तार लोगों को आजाद करती। और इसी तरह से लूका की इंजील उसके 5वें बाब की 15वीं और 16वीं आयत के अंदर भी दर्ज है जी। लूका की इंजील 5वां बाब 15वीं और 16वीं आयत। लेकिन मसीह का चर्चा ज्यादा फैला, और बहुत से लोग जमा हो गए ताकि मसीह यीशु की बातों को सुने जो जिंदगी बख्शती हैं और अपनी बीमारियों से शिफा पाए। मगर वो जंगलों में अलग जाकर दुआ किया करता था। मसीह यीशु की जमीनी खिदमत की कामयाबी दुआ के अंदर पिन्हा थी, बाप के साथ ताल्लुक के अंदर पिन्हा थी। और मसीह यीशु ने जब लाजर को जिंदा किया, तो जब मसीह लाजर की कब्र पर गए, यूहन्ना की इंजील 11वें बाब की 41 और 42 आयत के अंदर लिखा है कि मसीह यीशु जब वहां पर गए तो मसीह यीशु ने अपने हाथों को आसमान की तरफ किया और क्या कहा, ऐ बाप मैं तेरा। मसीह दुआ कर रहे थे, बाप के साथ बात कर रहे थे। और जब हमारी जिंदगियों में दुआ की सूरत में खुदा के साथ ताल्लुक मौजूद है, तो दुआ जो है वो आसमान को खोल देती है। दुआ जो है वो बंद कब्रों को खोलने का वसीला बनती है। दुआ बीमारों को अच्छा करने का वसीला बनती है। दुआ
बदरू गिरफ्तार लोगों के लिए आजादी का पैगाम लेकर आती है। मसीह यीशु की खिदमत का आगाज दुआ से होता है। मसीह यीशु की खिदमत का तसलसल दुआ के अंदर पिन्हा है। और मसीह यीशु किसी भी काम की तकमील से पहले क्या करते थे? दुआ करते थे। मत्ती की इंजील 26वां बाब उसकी 37 से 39 आयात के अंदर दर्ज है। जी पढ़िए इसको। मसीह पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को लेकर क्या हुआ? बेकरार और गमगीन होने लगा। जी मसीह ने उस वक्त उनसे कहा कि मेरी जान नहायत गमगीन है, यहां तक के मरने की नौबत आ पहुंची है। जी आगे। तुम यहां ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर यूं दुआ की, खुदा के लोगों ये लास्ट नाइट थी। इससे अगले दिन मसीह यीशु को मसलूब किया गया था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कलवरी की फतह के पीछे वो रात थी जो मसीह ने पूरी रात दुआ के अंदर गुजारी थी। खुदा के लोगों, दुआ हमारी जिंदगी के अंदर हमारे कामों की तकमील है। और यीशु मसीह ने कलवरी पर जान देने से पहले पूरी रात दुआ की। और यीशु की दुआ का सेंटर पॉइंट क्या था? ऐ बाप, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। ये यीशु की दुआ का सेंटर पॉइंट था। खुदा के लोगों, मसीह यीशु की खिदमत का आगाज दुआ से होता है। मसीह यीशु की खिदमत का तसलसल दुआ की वजह से बरकरार है। और मसीह यीशु के काम की तकमील भी दुआ के अंदर है। खुदा के लोगों, मसीह यीशु की दुआया जिंदगी से आज हम लोग अपने लिए क्या सीखते हैं? मसीह यीशु जब अपनी खिदमत का आगाज करते हैं तो वो किसके साथ करते हैं? दुआ के साथ। आज हमारी जिंदगी के अंदर दुआ नहीं है, इस वजह से हमारी जिंदगी में फेलियर्स हैं, हमारी जिंदगी में नाकामियां हैं, हमारी जिंदगी के अंदर कामयाबियां नहीं है, क्योंकि दुआ हमारी जिंदगियों का हिस्सा नहीं है। मसीह यीशु ने क्या किया? अपनी खिदमत का आगाज दुआ के साथ किया। आज हमारे दिन का आगाज कैसे होता है? आज हमारी जिंदगी का आगाज कैसे होता है? दुआ के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। यीशु के पीछे हजारों का मजमा होता था। यीशु 5000 मर्दों को खाना खिला रहा है, 4000 मर्दों को खाना खिला रहा है, लेकिन लोगों को छोड़कर तन्हा पूरी रात दुआ के अंदर मसीह क्या करते हैं? गुजारते हैं। आज हमारी प्रायोरिटीज क्या है? आज हमारी तरजीहात क्या है? बनना हम यीशु की मानद चाहते हैं, लेकिन यीशु जैसे काम हमारी जिंदगी के अंदर मौजूद नहीं है। दुआ हमारी जिंदगी के अंदर मौजूद नहीं है। अगर हम किसी भी काम को शुरू करने से पहले दुआ करेंगे तो यकीन कीजिए खुदा का आसमान आपकी जिंदगी पर खुल जाएगा। आसमानी मकामों से मददगार आपकी जिंदगियों के अंदर उतर आएगा। आसमान से आवाज आएगी कि तू मेरा प्यारा। ते ऐ दसो जेडे खुदा दे बच्चे ने उन्होंने किसी चीज की कमी है? और फिर तुझसे मैं खुश हूं, खुदा आपसे खुश हो जाएगा। और फिर खुदा अपने आसमान को आपकी जिंदगियों पर मुसलसल खुला रखेगा। फिर मसीह यीशु कामयाबी के दौरान भी दुआ करते थे। आज अगर थोड़ा सी हम कामयाबी की तरफ चले जाते हैं, हम दुआ को भूल जाते हैं। रात को मैं कहीं पर बैठा बात कर रहा था कि जो असी थोड़े जे कामयाब होंगे ना, असी कहने साडे कोल टाइम ही कोई नहीं,
दुआ से। लेकिन अभी हमने मरकस और लूका की अनाजील में से यह मुताला किया है कि यीशु ने पूरा दिन बीमारों को शिफा दी है, यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया है, यीशु ने बदरूहों को निकाला है। और यीशु क्या हुआ? सुबह होने से बहुत पहले, बुजुर्ग दाऊद भी कहते हैं ना, तड़के मैं तेनू ढूंढा या रब मेरे। जब तड़के हम उसको ढूंढेंगे तो फिर आसमान खुला ही रहेगा। फिर दाऊद को हथियार उठाना नहीं पड़ा। तेरे हथियार होवणगे खुदावंद दी, दुआ आपका वेपन बनेगा, दुआ आपका हथियार बनेगा। यीशु मसीह कामयाबियों के दौरान फिर भी तन्हा दुआ के लिए चले जाते। आज हमारा स्टेटस क्या है? थोड़ी सी हमें ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं, हम थोड़े से प्रॉस्पर हो जाते हैं, हम दुआ को भूल जाते हैं। आप दुआ करें, मुसलसल दुआ करें, और जब आप अपने टारगेट को अचीव कर लें उसके बाद फिर आप दुआ करें। दुआ जो है वो आपकी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। और लूका की इंजील लिखा 22वें बाब के अंदर कि मसीह अपने दस्तूर के मुताबिक दुआ करने के लिए गया। दस्तूर के लिए वहां पर लफ्ज आदतन, यानी मसीह को आदत थी दुआ करने की, और हमें आदत नहीं है दुआ करने की। मसीह ने खिदमत को शुरू करने से पहले दुआ की है। हमें अपने कामों को शुरू करने से पहले दुआ की जरूरत है, हमें कामयाबी के बाद दुआ करने की जरूरत है, और हमें मुसीबत में भी दुआ करने की जरूरत है। यीशु से क्या सीखते हैं? यीशु गस्तमनी बाग में क्या था? गमगीन और बेकरार। हाँ, और शागिर्दों को क्या कहता है? तुम यहां पर रुको, मेरे साथ जागते रहो। और मैं मसीह थोड़ा सा आगे बढ़कर घुटनों के बल होकर क्या करते हैं? दुआ करते हैं। मुसीबत में हम आश्रय ढूंढते रहते हैं, मुसीबत के अंदर हम लोग वो लोग ढूंढते रहते हैं जो हमारी मदद करें। लेकिन खुदा के लोगों, आज मेरे पास आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि अगर आप मुसीबत के अंदर हैं, दुख के अंदर हैं, तो एक जात है जो आपसे बात करना चाहती है। जब आप तन्हा उसके साथ बैठकर बात करना शुरू करेंगे, यकीन कीजिए वो गमगीनी फतह के अंदर बदल जाएगी। गस्तमनी बाग में दुआ की और कलवरी पर फतह हासिल की। अगर हमारी रातें दुआ के अंदर गुजरेंगी तो हमारे दिन जो हैं वो फतुहात के अंदर गुजरेंगे। फिर एक और बात, मसीह यीशु अपने अहम फैसलों से पहले दुआ करते थे। आज हम अपनी जिंदगियों में बहुत बड़े बड़े फैसले करते हैं, हम लोगों से मशवरे लेते हैं, हम लोगों से राय लेते हैं, लेकिन मसीह यीशु की जिंदगी के अंदर क्या था? आइए निकालिए मेरे साथ लूका की इंजील 6वां बाब और उसकी 12वीं आयत। लूका की इंजील 6वां बाब और उसकी 12वीं आयत। जी, उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला। और उन दिनों में ऐसा हुआ कि मसीह यीशु पहाड़ पर दुआ करने के लिए निकला, और खुदा से दुआ करने में कितनी रात? कितनी रात? सारी रात दुआ के अंदर क्या की है? गुजार दी है। जी, जब दिन हुआ तो उसने अपने शिगिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको रसूल का लक़ब दिया। और जब दिन हुआ, सुबह हुई, तो उसने अपने शागिर्दों को बुलाया और उनमें से 12 को चुन लिया और उनको रसूल का लक़ब दिया। यानी वो लोग जो मसीह के मिशन को आगे बढ़ाने वाले थे, मसीह ने उनको चुनने से पहले पूरी रात खुदा के साथ बातचीत की है, मसीह ने खुदा के साथ मशवरा किया है, मसीह ने खुदा के साथ बातें की हैं। तो खुदा के लोगों, आज हम लोग क्या कर रहे हैं? हम अपनी औलाद के लिए शादियों के फैसले करते हैं, लेकिन उसमें खुदा की मर्जी शामिल नहीं होती, वो फेलियर का शिकार हो जाती है।
हम बिजनेस का स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले दुआ नहीं करते हैं, वो फेलियर का शिकार हो जाते हैं। हम अपनी जिंदगियों में और बड़े फैसले करते हैं, लेकिन उन फैसलों के पीछे अगर दुआ शामिल नहीं है तो आज हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। आज का मसीही मुसीबत का, मुश्किलात का शिकार है। उसकी बड़ी वजह यह है कि उसकी जिंदगी में दुआ नहीं है। खुदा के लोगों, आज अगर हम दुआ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे, हम मसीह की मानिंद रातें दुआ के अंदर गुजारेंगे, बाप के साथ बातचीत में गुजारेंगे, तो खुदा के लोगों, खुदा का आसमान जो उसका अच्छा खजाना है वो आपकी जिंदगियों पर मुसलसल खुला रहेगा। खुदा का आसमान आपकी जिंदगियों पर खुला रहेगा और फिर रूहुल कुद्स भी दुआ के वसीले आपकी जिंदगियों पर नाज़िल होगा। और कलाम मुकद्दस बताता है 120 की जमात मसीह यस्सु के आसमान पर जाने के बाद वो किसका वेट कर रहे थे? कुव्वत के लिबास का, रूहुल कुद्स का। तो उसके लिए उनकी प्रैक्टिस क्या थी? वो 10 दिन से दुआ के अंदर थे। 10 दिन से 120 की जमात, औरतें मर्द मिलकर वो क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे। और जब वो दुआ कर रहे थे, और लिखा जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया, तो ऐसी आवाज जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है और गैर जुबाने, रूहुल कुद्स, दलेरी का रूह उनकी जिंदगियों पर उतर आया। वो गैर जुबाने बोलने लगे, वो रूहुल कुद्स से भर गए और वो गैर जुबाने उन पर आकर बैठ गई, फिर कभी ना जाने के लिए। खुदा के लोगों, दुआ आपकी जिंदगी में खुदा के ऐसे आसमान को खोलेगी कि आपकी जिंदगियों में पाकरू आएगा, आसमानी बरकत आएगी, आप खुदा के बेटे और बेटियां बनेंगे। खुदावंद आपसे खुश होगा और वो आसमान मुसलसल आपकी जिंदगी पर खुला रहेगा। आए एक लम्हा के लिए अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को झुकाएं। हर एक आंख बंद हो जाए, हर एक सर झुके। और आए अपनी जिंदगियों के अंदर खुदावंद की हजूरी को, खुदावंद की प्रेजेंस को मांगना शुरू करें। हालेलुया।